Hi everyone. So I don't know how to make this talk exciting after Sarah because we are in a very boring field of insurance. We do have a lending business, but equally boring. Uh, in fact, I think businesses which are boring are better businesses. Businesses do not need to be very exciting at all times. Uh, Aman has been part of the journey for many years before he started Comms Credible. Uh, in fact, BM also here was part of one of the early team members at Policy Bazaar. So, there's a lot to be talked about on these sort of topics, but we've been around for 15 years. And when you start off, you don't really think, 10-15 साल बाद क्या होगा, because you are thinking about how do you survive next 1 month, 1 quarter. And now today when I look back, पता नहीं चलता 15 years कहाँ निकल गए. The only main thing is थोड़े बाल सफेद हो गए मेरे, यशीज गंजा हो गया. Yashish my partner. But yeah, it's been a exciting journey of 15 years. And when you talk about persistence, there is no single answer to it, to be honest. There are enough businesses which have pivoted and being successful, and there are businesses which have not pivoted and have been successful. So, मतलब ऐसा कोई single formula तो है नहीं कि यही करेंगे तभी success मिलेगा. My thought process is that if you know that you are solving for something which is worth spending your time on, whether it's 2 years, 5 years, 10 years, and if there is enough demand out there which is not been met fully, or you are able to do it in a very different way, so your differentiated value proposition is very clear, then you need to just continue. See, persistence का क्या है ना, the best part is you are able to think about long term. And when you are able to think about long term, see, execution has to be short term, but you can't plan for short term all the time. You have to think about what you want to achieve after 5 years, 10 years, 20 years, whether it's in a business or in a personal life. And if you are able to think about that long term, multiple things happen. First of all, you are able to look at the matrices which you want to drive in long term. You're not trying to optimize something in short term. So that's what usually happens, when media talks to you or when investors put you in a certain direction. But if you are very clear कि आपको कहाँ लेके जाना है company को, so you are able to think about obviously long term and create those matrices. Now, why matrices are important in any business? Because that becomes the language of that business. It's like maths होता है ना, maths क्यों? Maths से हम समझ सकते हैं कि what is the way to look at the word. Similarly, those matrices are able to give guidance to the team of what is important as a company. You can't have hundreds of matrices, but whatever matrices you have are very important. And that also helps get company culture in a certain way, because पूरी टीम उठा सोचना शुरू कर देती है फिर. So यार देखो, इंडिया में तो मेरे को एक ही चीज में आई है, बिजनेस बनाने में टाइम लगता है. कुछ भी करने में टाइम लगता है वैसे तो, लेकिन बिजनेस बनाने में डेफिनेटली टाइम लगता है. There are very few success stories which may be overnight. मीडिया से एम्पलीफाई ज्यादा हो जाती है वो चीजें कई बार, बट इट्स लाइक हम सबने सुना है ना, वो ड्रॉप आउट्स होते हैं जो कॉलेज से निकल गए और कंपनीज बना ली. There was some data which was roaming around last week that out of 222 founders of unicorns, only 3 were dropouts. पर उन 3 को इतना मीडिया फुटेज मिलता है कि सबको लगता है यार कॉलेज क्यों कर रहे हैं हम. Everything takes time यार. When we had Tiger Global Funding, we were talking to the gentleman there called Lee Fixer for 3 years before he invested. Right? That won't be something which is popular or people will get to know about that. But the day he decided he want to invest, the decision got executed within 1 day. But 3 years पीछे जो लगे वो किसी को नहीं दिखेगा. So you have to just have that belief, but not a blind belief. I mean, if you are earning 5 rupees by spending 20 rupees, please don't do that, because then there is something very basically wrong with your business model as this exists today. So the way we have looked at our business is always that we said, okay, we will do what is right from our perspective, because if we are the founders, we need to know हमारे को business कैसे बनाना है. One simple example I can give is, we are a digital business. Now, digital business, everyone when you talk to will typically talk about how many visitors you get, which is what is top of the funnel, right? In our case, because we are a digital business, which is a transaction business, not an advertising platform, the top of the funnel is useless. You have 100 people, out of which 2 people buy, it will be a lot of inefficiency in your operations. You rather have 10 people, out of which 5 buy. So you have to actually cut down your top of the funnel and get to the right sort of customer base.
बट डिजिटल बिजनेस है, इफ यू आर नॉट एबल टू शो कि आपके विजिटर्स बेस बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं होंगे. इट्स अप टू यू टू कन्विंस द इन्वेस्टर्स कि नहीं, फॉर अस दिस इज द राइट मीट्रिक एंड हम इस पे फोकस करेंगे. सो you have to just think about what do you want to achieve. हमने जब start किया था, the company has gone through 4 phases. I'll just maybe take 2 more minutes on that. So none of us, the founding team members, have ever worked in finance services or insurance. In fact, even today on the Policybazaar side, I think in top 100 people, there will be 2 or 3 people who have ever worked in insurance. So हमने शुरू तो कभी कंपनी कोई प्रॉब्लम दिख रही थी. प्रॉब्लम क्या दिख रही थी कि यार लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं फॉर, या तो कंपल्सरी प्रोडक्ट है कार इंश्योरेंस, या सेविंग्स के नाम पे कोई चिपका जाता है कोई प्रोडक्ट. द रियल नीड है मिडिल क्लास इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस, विच इज प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज समथिंग विच वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. हमें समझ नहीं आता कि क्यों है, मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कोर. नाउ अनफॉर्चुनेटली इन अवर स्कूलिंग एंड कॉलेज वी डोंट गेट टॉट, सो कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा था. बट स्टार्ट किया, धीरे धीरे सीखा रूल्स कैसे हैं. देयर वर मल्टीपल टाइम्स द रेगुलेशंस वर क्रिएटेड टू किल अस. लाइक इन द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपनी, फर्स्ट 3 years, द for survival we used to do lead gen. Basically the leads were created on the website and passed on to insurance company. There was a rule which came out in 2011 which said, I mean we used to make about 50-60 rupees per lead, and they used to go to 2-3 people. But the rule came out which said you can make only 10 rupees. Now that was much lower than what we'll spend to get that lead. And there were multiple other cases where the rules were created to sort of kill us, but शायद हम गिव अप करने को तैयार नहीं थे, थोड़े यंग भी थे उस टाइम पे, तो ये था कि क्या फर्क पड़ता है, ट्राई कर लेते हैं. There was a phase in between where Yashish and I actually had a plan, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर विंटर सिनेरियो, कि अगर रेवेन्यू उड़ जाएगा तो कैसे सर्वाइव करना है, टीम कैसे कम करनी होगी, ऑफिस कैसे कम करना होगा, लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे. 5 साल बिना रेवेन्यू के भी चला लेंगे और कन्वर्ट कर लेंगे अपने आप को मीडिया कंपनी में, ये कर लेंगे. हमने बहुत सारे प्लान बना रखा था उसके अराउंड. सो बट एज आई सेड अर्लियर, देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन दीस थिंग्स. सो हमने लीड जेन से स्टार्ट किया, वेरी हाई ग्रॉस मार्जिन बट वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू. देन we got customers to go through the transaction platform, but at some point they will get transferred to insurance company platforms. These are called typically meta search models. Again, customer experience was broken. Then we said, okay, we have to do end-to-end integrations. वो करने की कोशिश की. उसमें भी प्रॉब्लम थी, बिकॉज यहाँ पे अगर मान लीजिए मेडिकल टेस्ट होना है एंड इंश्योरेंस कंपनी ने मेडिकल टेस्ट करवा दिया है बट हमें नहीं पता, और वी आर कॉलिंग कस्टमर, सर मेडिकल टेस्ट करवा लो, तो कस्टमर विल से क्या बेवकूफ लोग हो तुम्हें इतना नहीं पता. So you have to go deep into the back end also. And in scenario where insurance companies IT systems are very inward looking, not outward looking. So multiple phases के साथ grow हुआ है. Now we are at a stage where we are saying, okay, we are trying to get the right sort of product out there, considering the risk of the person. The buying should be as less friction. I mean, जितना निकाल सकते हो निकाल दो friction उसमें से. Partners के लिए fraud control में जो help कर सकते हो कर दो. And lastly, claim में जहाँ intervention कर सकते हो जितना कर सकते हो, because there are some rules which we have to follow, but that's the way business has grown over the last 15 years, and the way we are thinking about it today, there is enough to do for next 15 years also. There are very very large opportunities to create a global company out of India, and yes, we have got to a particular level, we have got access to capital, we have got access to investors, access to right people in the insurance industry today, but this is almost like start of what it can become. Luckily the team is in place, so that definitely helps. But that's in the broad nutshell of how the company has grown and what persistent sort of thing means to us. Any questions? Happy to take. If a youngster is starting a business today, you have seen it all, what advice would you like to give him or her? Yeah, try to solve for a problem. Don't chase valuation. That's the first thing. Biggest problem today is a lot of people are valuations. A lot of people are today saying, okay, मेरे को valuation चाहिए. हमारे पास भी आते थे लोग यार, सीनियर बंदे हैं. एक आया था, I'm Bangalore 2002 batch, quite a senior guy, right? 20 years experience. He wanted to create some product which is okay. 3 ट्रांजेक्शन हुए थे अभी तक और वैल्यूएशन मांग रहा है 20 करोड़. मैंने कहा 3 ट्रांजेक्शन किए तूने.
कुछ तो सोचो क्या कर रहे हो, एंड जो कर रहे हो वो भी कोई यूनिक काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब कोई भी कर सकता है वो, एंड पेटीएम एटीएम के लिए करना बहुत आसान था तो वो कर रहा था, तो तुम तो वैसे ही खत्म हो जाओगे, तुम्हारा डिफेंसिबिलिटी क्या है, मोड्स क्या है। सी व्हेन वी टॉक टू कंपनीज और एनी पर्सन ना, वी से एक्सप्लेन योर राइट टू विन, नंबर्स तो आ ही जाएंगे अगर तुम्हारा राइट टू विन क्लियर है, बट अगर राइट टू विन ही क्लियर नहीं है तुम्हारा तो फिर कर क्या रहे हो, क्यों अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो यार, नौकरी कर लो आराम से, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है दुनिया में। तो वो एक रोमांटिक नोशन क्रिएट हो गया ना स्टार्टअप्स के अराउंड, दैट कैन हर्ट अ लॉट, बिकॉज़ यू नो व्हेन अ पर्सन इज टेकिंग अ कॉल इट इंपैक्ट द फैमिली आल्सो, राइट? I've got my batchmates who have been trying to build a business for the last 10 years and they are still subscale. Now, good part is they're not giving up, but the tough part is their families are not able to get the lifestyle that they deserve somewhere. Now, after 20 years, 10 years more, maybe success आ जाएगी, but problem solve करना बहुत जरूरी है यार। तो differentiated value proposition जो है ना वो बहुत जरूरी होता है कहीं ना कहीं वो क्लियर करना कि why should someone come to you and pay you money? कस्टमर क्यों आए तुम्हारे पास? Yes, please. I have one very small query actually. And you did, by the way, many congrats. You did speak about few of the unicorns, and you were mentioning something about spending X and earning Y. I myself was going through the financials of few of these organizations. I looked at Urban Plan. Funny thing, to generate 1 rupee sale, they are spending 2 rupees. When I was talking to the CFO, he told me, you know, this is required. I am building my consumer funnel, and over a period of 5 years, this is how I see my image going. I was talking to someone at Uber. I had also spoken to other startups. To me, this whole startup scenario currently sounds like a bubble ready to explode, considering the financial modeling that has been presented is based on certain projections, which I somehow feel that is backed on certain factors which are beyond our understanding. What are you going to say about that? As you rightly mentioned, there are too many startups right now, and people were saying that they have built a unicorn and it's a great startup and my evaluation is this. इन्वेस्टर साइड पे सोचोगे ना, अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ दीज इन्वेस्टर नेवर बिल्ट अ बिजनेस, दैट्स अ रियलिटी यार। फोमो और ग्रीड से चल रहा है सब कुछ कि कोई तो आ जाएगा सॉफ्ट बैंक जैसा खरीद लेगा। हमारे पास भी सॉफ्ट बैंक है कैप टेबल पे, बाय द वे। नाउ आई हैव बीन टॉकिंग टू लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स ओवर लास्ट 5-7 years एंड आस्किंग देम कि यूनिकॉर्न का मतलब $1 billion वैल्यूएशन हुआ है तो कुछ तो देखा होगा ना। उन यूनिकॉर्न में से जो भी आज 100-125 हैं हमारे देश में, हाउ मेनी विल सर्वाइव आफ्टर 10 years? कैन यू इवन गेस कि मेरे को आज तक का बेस्ट आंसर क्या मिला है? जस्ट सर्वाइव। नहीं, इतना बुरा भी नहीं है यार, 20 के आसपास, दैट्स द बेस्ट आंसर। नो, देयर आर एनफ बिजनेसेस व्हिच विल, बिकॉज़ दे आर सॉल्विंग फॉर रियल प्रॉब्लम, तो सर्वाइव भी करेंगे। बट इफ यूनिकॉर्न्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर 10 years, देन क्या बना क्या रहे हो? सो यू आर टोटली राइट। हम तो ओपनली बोलते हैं यार 80% ऑफ इंटरनेट टुडे इन इंडिया जो हो रहा है वो पॉन्जी स्कीम है, राइट? बट ऐसा नहीं है कि सभी है भाई। जोमेटो की वैल्यू है ना, मेकमेट्रिक की भी वैल्यू है ना, बुक माई शो की भी वैल्यू है ना, कहीं ना कहीं से हमारी भी वैल्यू है, पेटीएम की वैल्यू है, बहुत लोग हैं। यूपीआई की सक्सेस क्यों हुई? यूपीआई की सक्सेस इसलिए नहीं हुई कि यूपीआई अपने आप में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है ऑब्वियसली, बट उसके आगे पेटीएम, फोन पे सब लगे हुए हैं, भीम से नहीं हुआ वो, राइट? तो if you are actually able to add value and solve for something and stay with it. अब मैं एक बता दूं, एक कंपनी है पसार पॉलिस इंडोनेशिया में, कभी नाम रिसर्च करना। They started about 7-8 years back thinking they want to become policy bearer of Indonesia. 2-3 साल में लगा यार ये बहुत टफ है, कहते हैं हम कुछ और करेंगे। तो एम्बेडेड इंश्योरेंस में जो इंटरमीडियरी होता है, बीच में कहीं पे होता है, वो बनने की चीज इंडिया में भी है 2-3, अब तो बंद हो गए ऑलमोस्ट। उसमें लगा कि पैसे नहीं बनेंगे, कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी बन जाते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस आ गया उनका, बट यार दे डोंट इवन नो व्हाट आर दे सॉल्विंग फॉर। 7 साल में 3 बिजनेस मॉडल चेंज हो गए हैं। आई थिंक $70 million प्लस तो रेज कर चुके थे पहले, पता नहीं और रेज कर लिए हो। तो बिजनेस कभी नहीं था उनके पास, कहानी थी
सो हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी स्टार्टिंग में. पीपल यूज्ड टू आस्क अस कि यार तो हमें तुम्हें फंड कैसे करें, हमें क्या प्रॉब्लम है. कहते तुमने जो कर रहे हो ना ये यूएस में भी नहीं हुआ, चाइना में नहीं हुआ, तो तुम कैसे कर रहे हो. मैंने कहा यूएस और चाइना में तो इसका मतलब इंडिया में नहीं हो सकता क्या. एक तो तुम कह रहे हो इनोवेशन फंड करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हो कि नहीं इनोवेशन अगर इंडिया में हो रही है और चाइना यूएस में नहीं हुई तो इनोवेशन नहीं है. तो हमें बहुत टफ होता था कई बार, खास मतलब दे जस्ट कांट बिलीव कि कुछ डिफरेंट हो सकता है. तो टू लार्ज एक्सटेंट यू आर राइट, बहुत कुछ जो हो रहा है वो आई वॉश है एंड वो वैल्यूशन चेंज करने के लिए हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कम हो रहा है. बट अगर उसमें से 20% भी बाय प्रोडक्ट अच्छा निकल आएगा तो बुरा क्या है. इट्स लाइक लोग वो बात करते हैं ना जब एनवायरमेंट की बात करते हैं कि भाई आजकल BRSR करना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है आपको दिखाने के लिए कि आप एनवायरमेंट के लिए कैसे काम कर रहे हो, और लोग कहते हैं ग्रीन वॉशिंग हो रही है. तो मैं कहता हूँ यार मे बी 1% लोग अच्छा काम कर रहे हो, 99% ग्रीन वॉशिंग हो रही है, बट वो 1% भी फायदा तो कर ही रहा है ना वर्ड को, तो क्या बुराई है. तो वही है यार, यू आर राइट, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीक है. नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू. सी आउटसाइड से ना हम लोगों को पता नहीं चलता कि किसी बिजनेस की डेप्थ क्या है, क्यों है. सो समवेयर यू हैव टू ट्रस्ट द टीम एंड देयर बोर्ड आल्सो. लाइक व्हेन वी लुक एट आवर ओन बिजनेस वी लुक एट NPV P&L, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पहले साल जब हम बेचते हैं तो वी मेक जीरो रेवेन्यू, जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट रेवेन्यू, जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन. उसमें बहुत एफर्ट जाता है, बट हेल्थ इंश्योरेंस के रिन्यूअल्स में हम बहुत कमा लेते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल बुक. सो द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर अस इज 20 to 25% द फर्स्ट ईयर. बाकी मेरे को बहुत प्रॉफिट आता है उसमें से, एंड दैट प्रॉफिट विल कीप ऑन बिल्डिंग बिकॉज बुक के ऊपर डिपेंड करता है. प्लस देयर आर लॉट ऑफ टाइम नॉन कैश चार्जेस जो अगेन आप लोगों को पता नहीं चलेंगे लेकिन अकाउंटिंग की वजह से लेने पड़ते हैं. लाइक दिस ईयर ऑन पेपर हम शायद 0 पैड दिखाएंगे या थोड़ा सा दिखाएंगे, बट हम 500 करोड़ कैश जनरेट कर रहे होंगे. कैश तो जनरेट हो रहा है ना कंपनी में. सो समवेयर यार उनकी कॉल है ना भाई, आप तो कंज्यूमर हो, किसी के पैसे लगे हैं, कोई बना रहा है, कोई अपनी जिंदगी लगा रहा है. यू एंजॉय जब तक एंजॉय हो रहा है. देखो मैं कहता हूँ ये बोट की तरह से है. जब स्टार्ट करते हो तो बोट बहुत छोटी होती है, राइट, तो छोटी सी वेव भी हिला जाती है. जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी हो रही है बोट से आप यार्ड बन रहे हो, शिप बन रहे हो, वो छोटी छोटी वेव पता नहीं चलती हैं. तो स्टार्टिंग वाले डेज टफ होते हैं. एक दिन में आपको 2 बार लग सकता है कि यार लाइफ में सबसे अच्छी चीज कर ली तुमने, और 2 बार लग सकता है सबसे घटिया चीज कर ली, दोनों एक ही दिन में. ठीक है. नाउ इफ यू डू नॉट हैव अ को-फाउंडर बहुत टफ है, बहुत टफ है. हमारे केस में हम 3 लोग थे स्टार्ट जब किया था, एंड दैट हेल्प्ड बिकॉज 2 लोग भी अगर नेगेटिव माइंडसेट में, कोई एक तो पॉजिटिव होगा शायद वो दूसरे को बाकी को खींच लेगा. वो लॉट ऑफ दैट स्टफ टेक्निकली यू कांट इवन शेयर इट फैमिली के साथ में या दोस्तों के साथ में, बताओगे क्या बताओगे यार. तो yes it is very very tough mentally, you have to be very strong. We used to always have a very clear idea of the downside कि अगर नहीं चला तो क्या करेंगे. See we started in 2008 when it was not very glamorous. मैं तो अपनी वाइफ के साथ बात कर रखी थी, हम गुड़गांव में रहते हैं, कि अगर जरूरत पड़ी ना ये वाला घर बेच देंगे, कुछ लोन है वो उतार देंगे, जो बचेगा उससे भिवाड़ी में जाके रहना शुरू कर देंगे. बच्चों की पढ़ाई थोड़ी लो लेवल की हो जाएगी, वो भी नहीं चलेगा तो नोएडा में मम्मी पापा का घर है ऊपर जाके रह लेंगे, वहां पर रोटी आती रहेगी. नाउ एज अ फैमिली वी वर ओके विद दैट डिसीजन आल्सो. टच वुड गॉड हैज बीन काइंड एंड थिंग्स हैव टर्न आउट नाइस. बट इफ यू आर रेडी टू गो विद द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, फिर क्या प्रॉब्लम है लाइफ में. बिकॉज यार वही है, एक ही तो लाइफ है, ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद जॉब आल्सो. मतलब आई वाज इन अ जॉब इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर स्टार्टिंग दिस. एक तो बहुत ही मेरे को पसंद था, another one was also okay, one was a disaster, but you also find good jobs, good managers, good companies, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है. It's just that यार कमर्शियल आउटकम के लिए नहीं करना चाहिए. देखो मेरा ये मानना है, आज भी इस कमर्शियल आउटकम का हमारी लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, टचवुड. तो जैसे आई वाज टॉकिंग टू यशीश, IPO से 10 पहले की बात है, मैंने कहा पैसे बनेंगे करेगा क्या, चलो जूते खरीदूंगा.
मैं जूते तो आज भी खरीद सकता है, कहता है मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैं तो रनिंग करता हूँ, रनिंग वाले आदमी को जूते ही चाहिए होते हैं, ना घर बदलेगा, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत आपकी लाइफ बदल जाती है, बट कितनी बदलती है यार, वही खाना यार, 2 रोटी 1 कटोरी दाल, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है बियॉन्ड द पॉइंट। बट खुशी कब मिलती है? खुशी जब मिलती है जब आपको पता है कि यार कितने लोगों के लिए आप एक्चुअली सॉल्व कर पा रहे हो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। जब किसी को क्लेम मिलता है ना, और जब उस क्लेम के बारे में उसकी मेल आती है या उसका वीडियो आता है, कई बार वी गेट ह्यूज नंबर ऑफ टचवुड पॉजिटिव एप्रिसिएशंस एवरी डे, मतलब वो खुशी जो मिलती है वो आप बिलीव नहीं कर सकते थे कि आपने किसी की लाइफ में एक्चुअल पॉजिटिव चेंज किया है। बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली एक टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस ना होने से एक जनरेशन पीछे चली जाती है। और हमारे ऑफिस पे भी देख चुके हैं हम, हमारा बल्कि मेरे एक स्कूल का साथी था, उसको मैंने हायर किया था, अनफॉर्चुनेटली पास अवे फ्यू इयर्स बैक, अनुराग का 1 साल जूनियर ही था एमडीआई से, एंड पूरी फैमिली के पास बस 1-1.5 लाख करोड़ की एक पॉलिसी थी। वाइफ काम नहीं करती, 3 बच्चे, जिनमें छोटा छोटा बच्चा 6 महीने का। अब अगले 20-30 साल कैसे निकालेंगे? उस पॉलिसी के इंटरेस्ट से कमाना है जो भी पैसा आएगा उसके बेस पे। तो यार इट्स मतलब वी फील वेरी प्राउड ऑफ what we are trying to achieve and how we are trying to change the mindset. It's a very tough thing. Aman has been through this journey. Communicating to the customer. See, PR became such an important thing because you have to get customers to think about these products and come. Just think about insurance as a category. कोई instant gratification नहीं मिलता। आपका बेस्ट यूज केस है कि आप ये प्रोडक्ट कभी यूज ही ना करो। आप कभी फेसबुक पे जाके, लिंक्डइन पे जाके लिखोगे नहीं, मैंने इंश्योरेंस खरीद ली, कार के बारे में, मोबाइल के बारे में लिखोगे, इसके बारे में नहीं लिखोगे। प्लस इट इज फोर्सिंग यू टू थिंक अबाउट नेगेटिव इवेंट्स व्हिच मे हैपन इन लाइफ एंड यू आर आस्क्ड टू स्पेंड 1-2 आवर्स टॉकिंग टू अस टू मेक द राइट डिसीजन। कोई नहीं करना चाहता यार। वो कहते हैं यार अब दिवाली आ गई है, बच्चे का बर्थडे आ गया, कुछ और आ गया, 3 महीने 6 महीने निकल जाते हैं। जब किसी घर वाले को देखते हो, दोस्तों को देखते हो ना, तब आता है वो शिट, ये ट्रिगर हो गया एकदम से, तब आता है कस्टमर हमारे पास। But it's very tough to keep that customer engaged. हमारा टॉक टाइम पर हेल्थ पॉलिसी एवरेज टॉक टाइम 2 घंटे था। कैन यू इमेजिन? 2 घंटे एंगेजमेंट करनी पड़ती है एक पॉलिसी बेचने के लिए, और कुछ 1000 रुपए कमाते हो उसमें। बस एक लोन बेच लो, 10,000 रुपए कमा लोगे। तो इट्स अ वेरी वेरी टफ स्पेस, एंड मे बी दैट्स द रीजन वी आर सो डोमिनेंट, बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट दिस। वी बिलीव दिस इज समथिंग विच एवरी मिडिल क्लास शुड हैव। मतलब 8-10 करोड़ घरों को बोला रहता है मिडिल क्लास इंडिया में आज की तारीख में। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 7 लाख है बस, और वो भी शायद एडिक्वेटली कवर नहीं होंगी। जोक है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ओह नहीं, एक और है यार। Also pondered by larger players. So how do you think, like, what is the direction if someone wants to go into the space and think about innovation? Is the future looking well on this end, or डिपेंड किस एरिया में? यू आर राइट, रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको बाहर से लगेगा कि ये करते क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन हम एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ले सकते हैं, हमारा रेवेन्यू स्कोप कम हो गया है। We cannot even have rating of insurance companies or their plans, not by us, by customers also. हमारे वेब पेज, बहुत सारे पेजेस हैं हमारे पास, जैसे मुझे एक किसी पेज पे हमने कंपेयर किया था एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस सम इंश्योरेंस प्लान, सब कंपेयर किया था। उसके ऊपर हमारे शो कॉज नोटिस आ गया था रेगुलेटर से कि तुमने नाम कैसे लिख दिया म्यूचुअल फंड का अपनी वेबसाइट पे। तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करना पड़ता है। टचवुड थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट एंड दे कीप ऑन इवॉल्विंग एंड यू हैव टू प्ले ऑन द एज यार। देखो जी में ना मैंने एक चीज सीखी थी, प्रमोशन के लिए 4 चीजें लगती हैं वहां पे, ऑफिसर्स जब सीनियर बनते हैं तो पहला है एनर्जी, आपकी सेल्फ एनर्जी कितनी है। दूसरा एनर्जाइज, आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट कर पाते हो। तीसरा एग्जीक्यूशन, और चौथा एज। तो जो एज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू आर नॉट ब्रेकिंग द रूल बट यू आर प्लेइंग ऑन दैट एज। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कैसे करोगे मैनेज उस चीज को इन एनी रेगुलेटेड इंडस्ट्री।
कहीं ना कहीं लगता है रेगुलेशन होना एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि आपको पता तो है कि क्या अलाउड है क्या नहीं है। अब जितने भी ये ई फार्मेसीज खुले थे तो रेगुलेशन नहीं था, तो हाउ डू यू देन ऑपरेट? कोई भी लोकल बंदा आके आपका बिजनेस बंद करके जा सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में। बट यस, इट बिकम्स टफ। This business has not happened in US mainly because of this reason, because Geico, Progressive and all, they never allowed a companion platform to come up. So एक बहुत अच्छी टॉक है, अगर देखना चाहो तो बिल गर्नी की है, about regulatory capture. It's called 2851 miles. That's the distance between Silicon Valley and Washington. 20 minutes well spent. One of the best talks you can ever see.